once again. This is Farhad Sir's Race Coaching Academy, and I welcome to all of you on my new video series English for Learner with Islamic greetings. Assalamu alaikum. And you are watching Ghazali Net. Friends, English is not our mother tongue. We learn English in schools, colleges, universities and different institutions as the third language. It is said that English is the window of the world. So if you want to improve your English, if you want to look out the world through the English speaking ability, this video is for you. Friends, nature has bestowed its beauty on the world in the different forms, in the different colors, shades and size. Nature gave the deep and dense forest, the huge mountain, different flora and fauna, the unstoppable rivers, the bluish water to the sea, as well as the glorious sun, the shining moons and the twinkling stars to the sky. Thus, nature has beautified this world. Nature has decorated this world with those things. Just like the same, the poet and the poetess make their poem beautiful, attractive, decorative by using different techniques, different style, different type of stylistic devices. Those stylistic devices called in English figure of speech. Yes, friend. Today we are going to learn figure of speech. Basically, it means sanate in Urdu, and in Marathi bhasha alankar. The concept of figure of speech is very simple. The figure of speech means a group of words or expressions that use not in its original meaning but an imaginary way to make the impact, the special effect of the line of the poem by the poet. It is the figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच यानी एक ऐसा लफ्जी मजमुआ होता है जिसमें शायर या शायरा अपने किसी लाइन, फ्रेज, आइडिया या वर्ड्स का हकीकी मायना, ओरिजिनल मीनिंग ना बताकर उसके ख्याली मायने यानी इमेजिनरी मीनिंग को बताता है. इसी स्टाइल को, इसी टेक्निक को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट ऑफ देम figure of speech one by one. Here, the first figure of speech is apostrophe. Apostrophe means in Urdu sanate khitab, and in Marathi sambodhan alankar. Apostrophe means the figure of speech when the poet or the poetess talks directly to the absent things, idea, object or person in the line of the poem. This stylistic device called apostrophe figure of speech.
फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। एपोस्ट्रोफ ये पहली फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम सीख रहे हैं। एपोस्ट्रोफ का क्या मतलब होता है? सनत खिताबत, और इसी को हिंदी और मराठी में प्रबोधन अलंकार कहते हैं। एपोस्ट्रोफ एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है, एक ऐसा पोएट्री का ढंग होता है, शायर का एक स्टाइल होता है, जिसमें शायर या शायरा अपने पोएम की किसी लाइन में या स्टैंजा में किसी गैर मौजूद चीज, ख्याल या जिस्म को मौजूद समझकर उससे खिताब करते हैं, उससे एड्रेस होते हैं। इस स्टाइल को एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमारे ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। एक्चुअल में इस लाइन में एक टीनेजर गॉड से, लॉर्ड से मुखातिब है, जो अब्सेंस थिंग है, लेकिन उसको प्रेजेंट मान के वो उससे प्रेयर कर रहा है। इसलिए जब कभी ऐसी लाइन किसी पोएम में ऑक्वर होती है, इस तरह के ढंग को, इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को हम एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसमें एक टीनेजर खुदा से दुआई अल्फाज में मांग रहा है कि ऐ खुदा, मेहरबानी करके मेरे दिल और दिमाग को खोल। Now let's learn the second type of figure of speech. The second figure of speech is here repetition. It means in Urdu sanate takrar. What is the repetition figure of speech? Repetition figure of speech in which the poet or the poetess use the same line, phrase, idea or any word to make their statement clear. We call such type of technique figure of speech repetition. For example, miles ago before I sleep and miles ago before I sleep. repetition का क्या मतलब होता है? जब शायर अपनी किसी लाइन में, पोएम की लाइन में कोई वर्ड को, कोई फ्रेज को या कोई आइडिया को बार बार रिपीट करता है ताकि उसका कहा हुआ स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर रीडर्स के समझ में आ जाए। इस तर्ज को हम रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जहाँ पर यहाँ पे शायर कह रहा है वो किसी एक जंगल में ठहरा हुआ है और वो फॉरेस्ट बहुत ही चारों तरफ से ब्यूटी से घिरा हुआ है। उसका दिल तो चाह रहा है कि वहाँ पर रुकना, लेकिन उसका माइंड उसे अर्ज कर रहा है कि उसे बहुत सारे काम हैं। इसलिए वो अपने की स्टेटमेंट को माइंड की बात मानकर कह रहा है एंड माइल्स एगो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स एगो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर शायर ने अपनी स्टैंजा में इस लाइन को रिपीट किया है ताकि उसका स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर रीडर को समझ में आए। जब कभी ऐसी टेक्निक, ऐसा ढंग शायर इख्तियार करते हैं अपने पोएम में, इसको रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, द थर्ड नंबर फिगर ऑफ स्पीच इज हियर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन means sanat tajzeem and in Hindi Marathi manvikar. Personification is the figure of speech in which when the poet and the poetess attributes the him or living things quality into non-livings and non-living quality into living things. Whenever such type of alteration occur in the line of the poem, it is the figure of speech personification. For example, my little horse must think it is square. Personification figure of speech एक ऐसी figure of speech होती है जिसमें कोई शायर गैर इंसानी खुसूसियात को इंसानों में, इंसानी सिफात को गैर इंसानों में, या जानदार की क्वालिटी को वो बेजान में और बेजान की क्वालिटीज़ को वो जानदारों में अल्टरेशन करके बताता है, डाल कर बताता है। इस तरह के ढंग को हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसकी एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी। इस पोएम की एक लाइन में
शायर हमको बता रहा है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट्स स्क्वायर। थिंक की क्वालिटी इंसानों की है, सोचना समझना, लेकिन शायर ने यहाँ पर हॉर्स को थिंकिंग क्वालिटी देकर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया। इस तरह से हमको एपोस्ट्रोफ, रिपीटिशन और पर्सोनिफिकेशन के कंप्लीटली मीनिंग पता चले। द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हियर एंटीथेसिस। एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच मीन्स सनत तज़ाद। इट मीन्स विरोध अलंकार इन मराठी। Antithesis figure of speech means when the poet or the poetess uses the opposite idea, the opposite lines, the word or phrase in the line or the stanza of the poem. It is the antithesis figure of speech. For example, if you can meet the triumph and the disaster, रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई बहुत ही मशहूर पोयम है इफ। उस पोयम की ये लाइन है जिसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया। एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच के लिए सूटेबल एग्जाम्पल है। एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें शायर या फिर शायरा अपने पोयम की किसी लाइन में कोई अपोजिट स्टेटमेंट, वर्ड या आइडिया पेश करता है, उसे एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इस एग्जाम्पल में इफ यू कैन मीट द ट्रायम्फ एंड द डिजास्टर, यहाँ पर ट्रायम्फ फतह के लिए इस्तेमाल किया गया है, विन विक्ट्री के लिए, एंड डिजास्टर यहाँ पे डिफीट के लिए, लॉस के लिए इस्तेमाल किया गया है। शायर ने यहाँ पर ट्रायम्फ एंड डिजास्टर